Hello, my dear children. This is Firdaus Rahman, and again I am here to teach you your English subject. So, in this video, I am going to cover your chapter 3rd of English grammar, which is negative sentences. So, before this chapter, I have already explained about sentences and kinds of sentences. But in this video, we will read about negative sentences. So, let's start. What is negative sentence? Negative sentence कहते किसे हैं? A sentence having not or no in it is called a negative sentence. वैसे sentence और वैसे वाक्य जिनमें ना और नहीं का यूज़ हो, not और no का यूज़ हो, उसे हम क्या कहेंगे? Negative sentence कहेंगे. Negative sentence expresses a refusal or denial. निगेटिव सेंटेंस से वो क्या एक्सप्रेस करता है? रिफ्यूज़ल और डिनायल को एक्सप्रेस करता है ना. यानी कि कोई भी चीज़ को हम इनकार कर रहे हैं ना, कोई चीज़ करने से मना कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं और रिफ्यूज़ कर रहे हैं, उसे ही क्या करता है निगेटिव सेंटेंस? उसे ही वो एक्सप्रेस करता है, उसे ही वो दिखाता है. नाउ लेट अस सी एग्जाम्पल्स विच विल क्लियर about negative sentences. So the examples are, here it is affirmative sentence and here it is negative sentence. Okay, पहले हम affirmative देखेंगे और affirmative से वो negative में कैसे change होता है और क्या फ़र्क होता है affirmative sentence में और negative sentence में, इस चीज़ को हम example के through समझेंगे. So the first example is, all boys are naughty. All boys are naughty. This is affirmative sentence. Now negative sentence, all boys are not naughty. So in this sentence not is used. इस सेंटेंस में किसका यूज़ हुआ है? नॉट का यूज़ हुआ है. इसीलिए सेंटेंस जो है वो कैसा सेंटेंस बन गया? निगेटिव सेंटेंस बन गया. किसी भी सेंटेंस में हम नॉट और नो का यूज़ करके उसे क्या बना सकते हैं? निगेटिव बना सकते हैं. ओके, नाउ योर सेकेंड एग्जाम्पल. योर सेकेंड एग्जाम्पल इज, शी इज़ अ लायर. सो दिस इज़ अफर्मेटिव. नाउ हाउ विल यू मेक निगेटिव? इसका निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? टेल मी. यस, नॉट का यूज़ करते हुए क्या करेंगे? इसे निगेटिव बनाएंगे. सो द सेंटेंस विल बिकम, शी इज़ नॉट अ लायर. शी इज़ नॉट अ लायर. नाउ द थर्ड वन इज़, they were players. So this is affirmative. So negative will be, they were not players. They were not players. By using not, we will make it negative. Now the fourth one. The fourth one is, I am a painter. So this is affirmative. Now by using not, we will make it negative. So in negative, it will become, I am not a painter. So the fifth one is, he was present yesterday. So this is affirmative. Now we will make negative. So by using not, किसका यूज़ करते हुए? not का यूज़ करते हुए इसे क्या बनाएंगे? निगेटिव बनाएंगे. he was not present yesterday. okay, the sentences written on the left hand side are affirmative. sentences क्या कह रहा है कि जो left hand side यानी कि ये जो sentences लिखे गए हैं वो कैसे sentences हैं? affirmative sentences है. the sentences written on the right hand side are negative sentences because they have the word not in them. और क्या कह रहा है कि जो राइट साइड में सेंटेंसेस लिखे गए हैं, दिस वन, वो कैसे सेंटेंसेस हैं? वो निगेटिव सेंटेंसेस है ना, क्योंकि इसमें किस चीज़ का यूज़ हुआ है? किस वर्ड का यूज़ हुआ है? नॉट वर्ड का यूज़ हुआ है. ओके, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. affirmative, all boys are writing, and in negative, all boys are not writing. in affirmative, I am going with you. in negative, I am not going with you. so किसका not का यूज़ करके हम इसे क्या बना रहे हैं? affirmative से negative बना रहे हैं. the sheep were gazing in the field. the sheep were not gazing in the field. the baby was playing. the baby was not playing. he is celebrating his birthday.
This is affirmative. Now in negative, he is not celebrating his birthday. In the last one is the washerman is washing the clothes. So in negative, the washerman is not washing the clothes. तो क्या कर रहे हैं, इन सारे affirmative sentence में हम not का यूज़ करके इसे क्या बना रहे हैं, इसे हम negative sentence बना रहे हैं. ओके. The negative sentences is in present continuous tense and past continuous tense are formed as follows. और अब हम क्या सीखेंगे, अब हम सीखेंगे कि अगर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में किसी सेंटेंस को निगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे. ठीक है. सो हियर इट इज़ रिटन is MR was were plus not plus present participle ing form का यूज़ करके हम क्या बनाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस को निगेटिव बनाएंगे. तो पहले समझ लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसको कहेंगे, जो चीज़ प्रेजेंट में हो रही हो उसे हम क्या कहेंगे, जो चीज़ प्रेजेंट में चल रही हो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहेंगे. और पास्ट कंटिन्यूअस जो यानी कि जो बातें हो चुकी है, जो आपका पास्ट है, जो अतीत में हो चुका है ना, उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट कहते हैं. तो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस करेंगे तो उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, प्रेजेंट में हम हमेशा इज़ एम आर का यूज़ करते हैं. किसका यूज़ करते हैं, इज़ एम और आर का यूज़ करते हैं. ये तीनों का यूज़ हम किस में करेंगे, प्रेजेंट में करेंगे. ठीक है. और इसके साथ हम वर्ब का फॉर्म कौन सा रखेंगे, वर्ब का आईएनजी फॉर्म रखेंगे, है ना. और वर्ब का आईएनजी फॉर्म को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल. ठीक है. तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, अगर प्ले है तो प्ले में आईएनजी लग जाएगा प्लेइंग, ईट है तो ईट में आईएनजी लग जाएगा ईटिंग, डांस है डांसिंग हो जाएगा. तो है ना, वर्ब में हम क्या ऐड कर देते हैं, उसके लास्ट में आईएनजी ऐड कर देते हैं, इसीलिए उसे हम लोग आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं. ठीक है. अगर उसी तरह पास्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, तो पास्ट में हम किसका यूज़ करते हैं, कैसे पता चलता है कि कोई सेंटेंस पास्ट में है, तो वो वाज एंड वर लगा हुआ होता है. ठीक है. उसमें क्या लगा हुआ रहेगा, पास्ट कंटिन्यूअस पता करने के लिए वाज और वर लगा हुआ रहेगा. ठीक है. और इसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, इसमें भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म रहेगा. ठीक है. यानी कि वर्ब में आईएनजी लगा हुआ रहेगा, तो वो कौन सा फॉर्म हो जाएगा, वो आपका पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म हो जाएगा. ठीक है. चलिए कुछ एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं. अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है कि जैसे देखो यहाँ पे द फर्स्ट वन, ऑल बॉयज़ आर राइटिंग, तो इसमें किसका यूज़ है, आर का यूज़ है. और आर से क्या पता चल रहा है, प्रेजेंट का पता चलता है ना. तो ये कौन सा, और वर्ब का कौन सा फॉर्म है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, राइटिंग है, यानी कि वर्ब में लास्ट में आईएनजी लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा. ठीक है. इसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को फिर क्या कर रहे हैं, हम निगेटिव बना रहे हैं, तो निगेटिव बनाने के लिए किसका यूज़ कर देंगे, हम नॉट का यूज़ कर लेंगे. ठीक है. तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, ऑल बॉयज़ आर नॉट राइटिंग. ठीक है. और अभी अगर हम पास्ट की बात करते हैं, नाउ सी एग्जाम्पल 4, द बेबी वॉज प्लेइंग. ठीक है. तो इसमें किसका यूज़ हुआ, वॉज का यूज़ हुआ, और वर्ब का कौन सा फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है, इसीलिए क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया. ठीक है. तो अब इसको निगेटिव बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, इसमें नॉट का यूज़ कर लेंगे, है ना. द बेबी वॉज नॉट प्लेइंग, द बेबी वॉज नॉट प्लेइंग, तो ये क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव में चेंज हो जाएगा. ठीक है. नाउ लेट अस लर्न मोर. चलिए अब कुछ और भी देखते हैं जिससे ज़्यादा क्लियर हो. Read and understand the following sentences. Affirmative sentences. The picture has a beautiful frame. In negative sentences, the picture has no beautiful frame. ठीक है. तो ये क्या है, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है इस साइड, और इस साइड क्या है, निगेटिव सेंटेंस है. तो इसके पहले हम एफर्मेटिव से निगेटिव नॉट का यूज़ करके बना रहे थे, है ना. पर अब हम एफर्मेटिव से निगेटिव नो का यूज़ करके बनाएंगे. किसका यूज़ करके बनाएंगे, नो का यूज़ करके बनाएंगे. तो यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, नो का यूज़ करके इसको निगेटिव बनाया है. द पिक्चर हैज़ अ ब्यूटीफुल फ्रेम, द पिक्चर हैज़ नो ब्यूटीफुल फ्रेम.
ठीक है, तो उसमें हम नो का यूज़ कर लिए तो ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया. नाउ अनदर एग्जाम्पल, वी हैव हॉलीडे टुडे. दिस इज affirmative. Now in negative it will like we have no holiday today. So no is there and by using no we make it negative. Now the third one is they had a laptop. So this is affirmative. Now in negative they had no laptop. So by using no we make it negative. The fourth one, he has a new car. He has no new car. So by using no we make it negative. You have a doll. You have no doll. So by using no we make it negative. no का यूज़ करके क्या किए, हम सारे affirmative सेंटेंस को negative सेंटेंस में चेंज कर लिए. ठीक है. Now let us see more points which will make you clear about negative sentences. Sentences containing has, have, has, had show possession. ठीक है, कोई भी ऐसा सेंटेंस जो जिसमें हैव, हैज़, हैड का यूज़ हो वो पोजीशन को शो करता है ना. अगर कोई चीज़ में हम अपना अधिकार दिखाते हैं या किसी चीज़ को जताते हैं कि ये मेरा है ना, तो वैसे सेंटेंस को लिखने के लिए या दिखाने के लिए हैव, हैज़, हैड का यूज़ करते हैं. The negative sentences containing have, had, has are formed as follows has, have, had plus no. अगर कोई सेंटेंस हैव, हैड, हैज़ से लिखा गया है, बनाया गया है, तो वैसे सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, हैव, हैज़, हैड के बाद नो का यूज़ करेंगे. ठीक है. नो इज़ अनदर निगेटिव वर्ड विच मीन्स नॉट एनी. नो क्या है, नो दूसरा यानी कि एक और निगेटिव वर्ड है जिसका क्या मतलब होता है, कोई और नहीं. ठीक है, जैसे नॉट होता है उसी तरह से नो भी जो है वो निगेटिव वर्ड होता है. ठीक है. नाउ लेट्स सी रूल्स फॉर मेकिंग नेगेटिव सेंटेंसेस. तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम जानेंगे कि निगेटिव सेंटेंस आखिर बनाते कैसे हैं, कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे हम नो का यूज़ करेंगे, कहाँ पे नॉट का यूज़ करेंगे, सेंटेंस में किसके बीच में नो लगेगा, किसके बीच में नॉट लगेगा. क्योंकि अगर हम लिख रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि जब कोई रूल ही नहीं होगा तो फिर कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे यूज़ करना है ना. कोई भी कहीं पे भी नो का यूज़ कर लेगा, सेंटेंस स्टार्ट कर रहा है उसमें भी नो का यूज़ कर लेगा, एंड में भी नो का यूज़ कर सकता है, बीच में भी कर सकता है. तो चलिए हम सीखते हैं कि हम कहाँ पे नो और नॉट का यूज़ करेंगे ताकि हम सही ढंग से किसी सेंटेंस को लिख सकें. ओके. For making negative sentences, the word not is placed between the helping verb and the main verb. ठीक है, तो अगर किसी सेंटेंस को आपको निगेटिव बनाना है तो नॉट वर्ड जो है वो कहाँ रहेगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रहेगा. ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब में आपका आ गया इज़, एम, आर. सो इज़, एम, आर ये आपका क्या हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया. बाकी इसको छोड़ के जो भी वर्ब आता है वो क्या हो जाएगा, आपका मेन वर्ब हो जाएगा. ठीक है. सो लेट्स सी एग्जाम्पल विच विल मेक यू क्लियर about which one is helping verb and which one is main verb and where you have to put no. So the example is they are not driving. So are, here are is there and driving is there. सबको पता है ड्राइविंग क्या है, वर्ब है और वर्ब का कौन सा फॉर्म है, ing फॉर्म है. सो आर, और आर क्या है आपका, आर आपका हेल्पिंग वर्ब है. हेल्पिंग वर्ब को ही हम एक्सुलरी वर्ब भी कहते हैं. तो आर जो हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया और ड्राइविंग जो हो गया आपका मेन वर्ब हो गया. तो हम लोग नॉट का यूज़ कहाँ करेंगे, आपके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में करेंगे. तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब और इसके बीच में ये नॉट है. सो इसी तरह से हम किसी भी सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे. ठीक है. नाउ लेट्स सी मोर एग्जाम्पल. In negative sentences, the word not is jointly used with the modal verb can. She cannot solve this puzzle. और अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं और उस नेगेटिव सेंटेंस में मॉडल का यूज़ कर रहे हैं तो आप जो है नॉट का यूज़ मॉडल में के साथ ही करेंगे. ठीक है. तो मॉडल वर्ब कौन कौन से होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ये सब क्या हो गया,
ये आपका सारा मॉडल वर्ब हो गया। तो कैन है, ठीक है। तो कैन के साथ है शी कैन सॉल्व दिस पजल। अगर ये एग्जाम्पल है शी कैन सॉल्व दिस पजल, तो ये क्या हो गया, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसको आपको निगेटिव बनाना है। तो आप निगेटिव कैसे बनाएंगे, कैन के साथ ही नॉट का यूज़ करेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, कैन नॉट। शी कैन नॉट सॉल्व दिस पजल, शी कैन नॉट सॉल्व दिस पजल। ओके। और कैन नॉट क्या है आपका, कैन नॉट आपका मॉडल वर्ब है। कैन नॉट क्या है आपका, मॉडल वर्ब है। नाउ सी अनदर वन। In English language, the following negative contractions verb plus not are generally used. चलिए, तो अब हम कुछ ऐसे वर्ब देखेंगे, ठीक है, जिसमें हम नॉट का यूज़ करते हैं, ठीक, उसके साथ, और फिर उसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है। वर्ब के साथ क्या देखेंगे हम, वर्ब के साथ नॉट का यूज़ देखेंगे, और फिर उसको कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं उसको सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज़ नॉट। इज़ नॉट को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एवरीबॉडी लुक हियर, आई एस लिखेंगे, उसके बाद एन लिखेंगे, उसके बाद से टी का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसी तरह से आर नॉट है, तो आर नॉट कैसे लिखेंगे, वाज नॉट, लुक हेयर हाउ यू राइट वाज नॉट, वर नॉट, हैव नॉट को कैसे लिखेंगे, हैज़ नॉट, डू नॉट, डोंट, हैड नॉट, हैडंट, मस्ट नॉट, ठीक है। यहाँ पे देखिए डज़ नॉट को कैसे लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, डजन, डिड नॉट, डिडन, शैल नॉट, शुड नॉट, शुडंट, कैन नॉट, कांट। कैन नॉट को कैसे लिखेंगे, एवरीबॉडी लुक है, देखिए यहाँ पे, कुड नॉट, कुडंट, वुड नॉट, वुडंट, विल नॉट, वॉन्ट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका शॉर्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। तो आपको वर्ब को अगर निगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे और उसका शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे। गॉट इट एवरीवन? सो योर चैप्टर इज़ completed now. This is your chapter. I hope everybody will understand. So your homework is you have to read this chapter. What you have to do? You have to only read this chapter, and after reading you have to remember few definitions and verb short form. क्या करना है आपको, ये चैप्टर पहले तो पढ़ लेना है, उसके बाद से आपको 2 डिफिनीशन याद करना है। पहला तो ये निगेटिव सेंटेंस का डिफिनीशन याद करना है, ठीक है, और फिर आपको ये वर्ब का निगेटिव बना के उसका शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे वो याद करना है, ठीक है। सो दिस इज़ योर होमवर्क। ओके।